हाँ 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 हाँ। हेलो, हेलो। हाँ सर, सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी मनीष जी। तो आवाज आ आप, रही है? हाँ जी आ रही है। आप अपना वीडियो बंद कर लें, नहीं तो बैंडविड्थ का इशू आएगा। आप को होस्ट अच्छा हैं, अच्छा, आप शुरू करें, क्योंकि इसके बाद एक और सेशन फिर है हमारे पास। ठीक है सर। So will this video be uploaded someplace? In case we miss, we can watch it later. I think it is being recorded. Yes, yes, yes. It is recorded. Recording is on. हाँ जी, शुक्रिया। स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो। हाँ, हम जो इसमें जो है मोमेंटम इंडिकेटर जो लेंगे वो स्कॉच स्टिक का 2 पैरामीटर, स्कॉच आरएसआई का 1 पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर आप नोट कर लो, तो फिर इसके बाद आपको मिलेगा नहीं। और कैसे उसको रीड करना और कैसे देखना है, 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का ही है। स्कॉच स्कॉच स्टिक का जो पैरामीटर हमारा है वो लेंथ है 4, स्मूथ डी 2। दिस इज द माइक्रो कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज 932। लेंथ विल चेंज विथ 9, 3 and 2 and Scotch RSI that is the same 7432. Length RSI is 7, length Scotch 4, smooth K D3 and smooth D2. Is it clear? Yes, yes. ठीक है। अब यहाँ के भीतर हमको रीड कैसे करना है? हमको रीड ये करना है कि जिस जगह पर भी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका जहां पर भी ये टॉप लेकर के टॉप बनाने के बाद माने 94, 92 के ऊपर जहां पर जा करके वो टॉप बना करके टर्न करेगा, वहां से वो एक माइल्ड रिट्रेसमेंट लेगा। कहां तक लेगा? जहां पर ये पहला वाला और तीसरा वाला, फर्स्ट एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपनी जगह को कंप्लीट करेगा। व्हेन इट विल कंप्लीट, और इस स्टेट के भीतर हमको ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये स्पॉट का है, फ्यूचर का नहीं है, स्पॉट का है। स्पॉट के ऊपर ऑप्शन चलता है, इसलिए हमने स्पॉट को लिया हुआ है। स्पॉट के मूवमेंट पे हमारा सी या पी, इसको यूज करने के लिए हमारे लिए बेस्ट वे है कि हम जो है इन द मनी ऑप्शन के भीतर अगर हम लेते हैं तो हम बहुत बढ़िया से प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा निकलेगा। मैंने वो स्मॉल जो 20 पॉइंट का रन होगा तो वो ऑप्शन हमको 20 पॉइंट दे के जाएगा, और फ्यूचर भी अकॉर्डिंगली सेम दे कर जाएगा, क्योंकि दोनों साथ होता है। और हमारे ट्रेड के भीतर टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। ये ट्रेड हमारा जो है, जैसे अभी ये फर्स्ट एंड थर्ड है, ये अगर तीनों कॉम्बिनेशन जिस भी जगह पे बॉटम में मिल जाएगा, वहां पे ये ऊपर के लिए जर्नी लेगा। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट ने मैरिज कर लिया, सेकंड जो है मैरिज कर रहा है बीच इन बिटवीन में, और थर्ड जो है ये क्रॉसओवर कर लिया, मतलब अब यहाँ पर ये फिर वापस एक ऊपर की जर्नी ले रहा है। Excuse me, sir. यस Sir, English, please, sir. ओके। when the first combination and third combination that will reach on a top above 92 parameters, and the value of the parameter will be above 92, then we have to close our long trade and ready for the short. By this we can trade in both sides, up and down both sides.
And for this, if we have to use this on an option, then we can use in the money call option or put option with very small stop loss like a 20 or 30 points. And trade execution time will not more than 4 minutes. So you have to one should very sharp taking action. If want to do this system in one system, it is very difficult, because when you are monitoring this and shift to go for trade, so unless until if you are a professional trader, then you can do this. Otherwise, if you are not so quick or not professional, you cannot do this. But might be in future, I will this you in Algo auto trade system tool that is going to that is under processing at this point 11:30. At 11:30 the position is this, and you see that from there it is fallen, and here it is crossover, and first one also crossover. So exactly from this area, this is the Bank Nifty is 36,616 spot. 13,600, 11:30. It is spot. Any time it is going to up. And this is the actual. This is the buy area of the spot, and where our stop loss is 50 point only. 36,550 is our stop loss on a spot basis, and trade is long side, because all this are consolidation and ready for the jump, and this is making second mountain. After make second mountain, it will start rapid kick up in a 2 minute. It will not take much time, because why it is holding this? Because it is completing the 5 minutes. And what is the situation of 1 hour? Directional 1 hour is on top, but it will turn. It will try to kick one more. For 1 hour, market is upside. And 15 minutes is completed, and it is on the process of the second mountain is going to complete, and the third will be made. And what is the status of daily? To use this on daily, we can assume that the market direction is this side is the market direction. For the daily, it is showing that one more day run is still pending. But for the momentum, we have to check initially 1 minute, because we have to do on a micro, and it started journey for 596 or 589. It started to the 630. 610 we taken position. When we have to exit, just going to tell you on that. Best, I'm using this for 1 minute time frame. I'm not going for the bigger time frame. For bigger time frame, only to check the direction of the market only. As of 4H. Basically, instead of checking 1 day, better to check on 4H. For 4 hour and 2 hour. For 4 hour and 2 hour, you will get much better result, much accurate result. And it will give a good range. At least we got 50 points. At least we got 50 points, and still run is there, and that the run size, the movement of the size of the indicator is low.
So it means that it will try to reach at 656. It is trying to reach at 656, and for at as 656 it will about to complete its run, and there it will take 1 minute, and which type of the crossover it made, we have to check, and then take decision for the short side. But still it is long, and 649 and 6, it is playing between 649 and 652. Third is completed and made marriage. So this 1 minute is the final minute of the run, where we have to exit. This is 649. Never wait for the crossover. Whenever any indicator, first, second, third, any indicator completed their run, just book profit and exit. Maximum stop loss of this system is 50 point in Bank Nifty. 50 point in Bank Nifty concept is 0.02%, not stop loss should not exceed than 0.02%. Maximum 0.02%. It reached 650, 654. But this is the last 30 seconds where you have to, one should have to exit. 658. It completed target 656, 661. Anytime the run is going to close and it will back 678. 678. And this is travel with the flatty travel normally give one kick and then fall. So market will going to fall in a minute from here. How much it will, that will not much bigger, but where it has to be completed. Yes, it is marriage. Just next candle, next on with the next candle, with the next 1 minute, we will go, because the second one is not completed. It is trying to complete. It is completed. Now it is fall. It will start fall. Now Bank Nifty is 671.65. 670.45. Our short is created. Our short is created. सर पूछ सकते हैं कुछ? यस सर आपने ये जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एंट्री जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, ये क्रॉस ओवर से हो रही है, तो क्रॉस तीनों के ओवर से नहीं, मैरिज से जहां पर सर- भी अगर डाउन या अप, जहां पर भी तीनों आपको एक जगह मिल जाएगा, तो दैट इज द हेवन पॉइंट. दैट इज द हेवन पॉइंट. माने वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा ही. माने जरूरी नहीं है कि आप ये जो है ये प्योर इंट्राडे और प्योर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए यूज होता है ऑपरेटर द्वारा. हाँ जी, तो और हमने कोई ये भी अभी ऑपरेटर आपको ये चीज बताएगा नहीं. ये वही जानता है जो ऑपरेटर रहा हो या ऑपरेटर हो, उसके अलावा कोई नहीं जानता. मैनुअली इसको देखना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और इस पे प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप तेजी हो या मद्दी का मार्केट हो, आप सिंगल साइड का, हफ्ते में 5 दिन होता है, 5 डे इन अ वीक. फर्स्ट एवरी डे you do paper trade on upside. First 4 day you try to get upside clarity. जब आपको उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप उसके बाद के 3-4 डे जो है वो आप डाउन साइड का ही ट्रेड खाली खोजो इन 1 मिनट. जब दोनों पे हो जाती है, तब आप उसके बाद के 4 डे में दोनों साइड का ट्रेड आप ले हो. इजी वे में आप बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट इन अ डे आप आराम से निकाल लोगे, जिस दिन आप दोनों साइड का ट्रेड देखने लग जाओगे. चाहे उसकी रेंज वो साइडवेज हो. साइडवेज मार्केट इज मच बेटर फॉर अस. अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो थोड़ा सा जो है उसके भीतर एंटी डायरेक्शन वाले के भीतर थोड़ा सा जो है वो कॉशन
रहता ही है, उसमें कभी कभार सिर्फ 1% चांस रहेगा स्टॉप लॉस हिट होने का, नहीं तो नहीं। अभी ये सर 76 एंट्री अभी क्लियर नहीं हुई है मुझे कि लाइक एंट्री तीनों का आपने समझाया, तीनों को ज्वाइन होना चाहिए। नहीं, तीनों अगर एक जगह पहुंच गया 92 के ऊपर पहुंच गया और मैरिज कर लिया, और एक अगर टर्न कर गया, तीनों में दो कोई भी टर्न कर गया, तो आपको जो है वो पोजीशन जो है टर्न कर दिया या मैरिज करके क्रॉस ओवर करके ब्लू लाइन पहले दबेगी। हाँ जी, ब्लू लाइन पहले दबेगी, वो आप सेकंड टू सेकंड और मिनट टू मिनट आप चेक कर सकते हो। अब ये फॉल करीब करीब खत्म होने की जगह पर आ गई, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड जो है, ये फर्स्ट और थर्ड इंडिकेटर ये कंप्लीट हो गया है, और सेकंड जो है ये बड़ी रेंज देता है, इसलिए उसके उस पे नहीं। हमारा मेन बेसिक है कि हमको जो है परफेक्ट ट्रेड लेना है। हमें 40 पॉइंट से 40 पॉइंट अबव हमको मिल गया है। एटीएम में भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सर कि 20 पॉइंट का? आप एटीएम 200 ATM या 300 का? हाँ, आप जो है आप 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो जब आपकी आंख सेट हो जाती है। हम तो बगैर स्टॉप लॉस के काम करते हैं, अपना जो काम करते हैं बगैर स्टॉप लॉस के करते हैं, और इसी का मेरा जो है वो ऑटो सिस्टम बन रहा है, सॉफ्टवेयर अपना सेल्फ का डेवलप हो रहा है। वो हो जाएगा तो हमें कुछ करना नहीं है, लॉगिन करके एपीआई की डाल करके छोड़ देंगे, वो अपने आप करता रहेगा। जब होगा अपने आप उसके कमांड के ऊपर अपने आप बेचेगा, अपने आप लेगा फ्यूचर में। एग्जिट कर दो, 25 है संजीव, निकल जाओ। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना रह सकता है? रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम 0.02%। आपका बैंक निफ्टी का जो फिगर है उसका 0.02% आप कैलकुलेट कर लो, तो कभी भी आपका 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा। टारगेट कितने पे बुक करना है? टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट हमारा इंडिकेटर का फ्लो है। ये 3 मिनट में आपका 3 मिनट, हमने ये ट्रेड जो किया रहा है ये 11:40 में हमारा ट्रेड था, और हमारा ट्रेड जो कंप्लीट हुआ है वो 11:47 पे हुआ है। 7 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। एक ट्रेड में आप मान करके चलो आपको 3 मिनट से 7 मिनट का टाइम मिलेगा, ज्यादा नहीं। अगर दोनों साइड ट्रेड करते हो तो, अगर सिंगल साइड भी ट्रेड करते हो तो आपको 3-4 मिनट से ज्यादा आपको आप सौदा फंसा नहीं रहेगा। 3-4 मिनट के भीतर आपका आपका ट्रेड जो है वो एक ट्रेवल 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। सर और बाय करना है, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है या सेल करना है इसमें? नहीं, बाई के लिए। सेल के लिए तो हमें 4H को हम यूज करते हैं, हम तो इन द मनी राइटिंग करते हैं, इसलिए हम उसको 4H को यूज करते हैं। अब इसी में आपको हम 4 आवरली जो है इसको देखते हैं। अब ये 4H लगा दिया। 4H के भीतर कल की पोजीशन देखिए, ये थी। कल जो है वो हम पुट शॉर्ट इतने सब नीचे का सोच रहे थे, हम पुट राइट करके गए थे। सर वो तो ओवरनाइट बोल रहे हैं आप? यहाँ 4H के लिए ओवरनाइट, इसमें हमको रेंज बड़ी मिलती है। राइटिंग के भीतर तो हमारा फाइनल एक्सपायरी चलता है, तो इसलिए 4H को लेकर चलते हैं। और वीकली का क्या स्टेटस है? वीकली ने अपने क्रॉसओवर को खत्म कर लिया, मतलब कल ही कंप्लीट कर लिया रहा, कल ही इसने कंप्लीट कर लिया रहा ये बना करके। इस हफ्ते का इसने करी, हफ्ता खत्म नहीं हुआ है लेकिन इसने कर दिया, मतलब ये क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि नेक्स्ट वीक में हम जो है एटलीस्ट जो है 37,487 तक जाएंगे टिल नेक्स्ट वीक। 487 की फिगर कैसे आई? हाँ, 487 की फिगर कैसे आई आपने बोला? एक सेकंड। हाँ जी। दो चीज है 487। ये टोटल जो माने ये जो वीकली जो है इसके भीतर हम मूविंग एवरेज का भी, जो एल्गो मूविंग एवरेज का 2 EMA, 4 EMA और 7 EMA, ये 3 EMA यूज करते हैं। और 487 के भीतर 2 EMA का जो है आपस में अप्रोक्सीमेट एवरेज क्रॉसओवर है,
जो हमारा 4 EMA और 13 EMA का है। हाँ जी। तो वो एरिया जो है उसको वो चेक करेगा ही, वीकली के भीतर वो चेक करेगा ही। और वहां पे एक कंफ्यूजन भी, अगर इसको फर्दर भी गिरना होगा तो वहां पर एक कंफ्यूजन वो पैदा करेगा ब्रेकआउट का, कि ये मॉर्निंग स्टार बना करके चल रहा है। तो ये वीक के भीतर अभी तो ये कैंडल यहाँ पर है, ये चल रही है, तो ये डोजी स्टार बनाने के बाद ये अप ट्रेड है। यहाँ पे ये कल डोजी के शेप में रही, आज ऊपर किया हुआ है वीकली में। तो वीकली के भीतर अगर हमारा जो है वो, आप इसकी ट्रेवलिंग देख लो, आपके सामने है। इसने जो है वो जहां पर तीनों ने क्रॉसओवर किया रहा, उस वीक के भीतर आप ये देख लो, ये 41,048 पे इसने फॉल के लिए बोला रहा कि हमारा रन खत्म हो गया, आप एग्जिट हो जाओ। वहां से इसने फॉल दिया, और फॉल दिया तो 3 से 4 कैंडल रहेगा। 1 मिनट की भी 3 से 4 कैंडल रहती है, वही वीकली के लिए भी 3 से 4 कैंडल होती है। तो इन द मनी राइटिंग के भीतर, और जहां पे बॉटम हो गया वहां पर बोला कि एग्जिट हो जाओ। बीच में रन आया, ऊपर नीचे गया, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमें अपना जो है इंडिकेटर टू इंडिकेटर चलना है, क्योंकि हम इसके अलावा बाकी और कोई चीज नहीं मानते हैं। और डेली की जगह डेली को नहीं देखते हैं, 4H देखते हैं, 4 आवरली देखते हैं, क्योंकि एक दिन के भीतर हमारा 5 घंटा होता है। तो 1 घंटा जो है वो उसको हम एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो मंथली की पोजीशन है, मंथली की पोजीशन हमको जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं दे रही है। ये बगैर फॉल के एरिया को इंडिकेटर कंप्लीट कर रहा है। ये एडजस्टमेंट है, ये बहुत ज्यादा रन नहीं लेगा। इस महीने में 37,500 के आसपास जाकर के रुकेगा, जो पाइवट और दूसरा एरिया भी आकर के हो जाएगा, फिर वापस अगेन फॉल लेगा। और वो 2 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब बिगर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कल की पोजीशन आप ये देख लो कहां पर था, क्या किया था इसने। कल की पोजीशन में इसने यहाँ पर आकर के मैरिज करने के बाद ये सेकंड माउंटेन सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले ने बनाया। अगर सेकंड माउंटेन बन गया मतलब वो प्योर ट्रेड हो जाएगा 15 मिनट का। सीधे हमको गैप अप दिया और ऊपर ले करके गया, ये लेके गया। फर्स्ट हमको एग्जिट यहाँ पे कराया 15 मिनट पर, हमें शॉर्ट नहीं कराया क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं था, प्रॉपर नहीं था, उसने नहीं कराया। 15 मिनट के ऊपर हमें शॉर्ट नहीं करना, हमें जो ट्रेड करना है वो 1 मिनट से करना है। इससे पहले देखिए, इससे पहले भी 2 बार माउंटेन बनाया था इधर, थोड़ा सा पहले देखिए, यहीं पे पहले ये यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया। उसके बाद रन मिला ही है। अगर इसने माउंटेन सेकंड माउंटेन बनाया है तो ये बनाया 36,128 पे, वहां से ये रन दिया। और बीच में अगर किसी भी जगह बीच में जाकर के मैरिज करता है और क्रॉसओवर करता है तो उनको निकल लेना है। हमें इसमें एंट्री को प्रॉपर देखना है और एग्जिट के लिए फास्ट रहना है। ये 15 मिनट पे है, 15 मिनट पे है। ये आप बैक टेस्ट के लिए आपको दिखा रहे हैं 15 मिनट पे। और इसी आज कोटक क्यों चला है, कोटक जो है वो कल बॉटम बना चुका था वीकली में, इसलिए आज कोटक चला है। जबकि वो अपने इंपॉर्टेंट एरिया को 19,002 को ब्रेकडाउन करके बंद किया रहा नीचे, उसके बाद भी ऊपर चला है। क्यों चला है और क्यों ट्रैप किया जाता है, वो इसी के उस पर ट्रैप किया जाता है। अब ये यहाँ पर ये जो है ये अपना बना रहा है। निफ्टी बैंक जो है वो यहाँ पे ये वापस 36,605 पर है। ये यहाँ पर अभी प्रॉपर नहीं लिया है, ये सेकंड माउंटेन लिया है, लेकिन ये क्रॉस ओवर करने के बाद रेड जो है ये अपनी टिंट नहीं ली है। मैंने ये अभी सजेस्ट ये कर रहा है कि आप रुके रहो, अभी तुरंत हड़बड़ी करके तेजी का सौदा मत लो। सर क्रॉसओवर हो नहीं गया क्या? लाइक क्रॉसओवर नहीं, क्रॉसओवर यहाँ पे सेकंड माउंटेन का क्रॉसओवर हुआ है, पर ये जो सेकंड माउंटेन है ये प्रॉपर नहीं है। सेकंड माउंटेन के भीतर जो फर्स्ट माउंटेन के बराबर व्यू वाला आकर के तब क्रॉसओवर होगा, और थोड़ा सा उसके ऊपर रेड वाला आना चाहिए। और ये फ्लैट चल रहा है, ये फ्लैट चल रहा है, मैरिज चल रही है, अभी मैरिज चल रही है, अभी मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है। और ये सेकंड के बाद अगर ये प्रॉपर फर्स्ट से सेकंड जो है थोड़ा बड़ा अगर मिलता है तो वो प्रॉपर होता है। और थर्ड जो है थर्ड वाले के भीतर है,
यहाँ पर बाई किया जा सकता है। 593 है, 596। फ्यूचर कितना चल रहा है अभी? फ्यूचर चल रहा है 732। 585। ये सेकंड माउंटेन कंप्लीट कर रहा है, अभी क्रॉसओवर नहीं किया है। वो फॉल्स क्रॉसओवर, प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं था। ये क्या है, उसको मैरिज किस करके नीचे दबा रहा है। अब ये जो क्रॉसओवर, अब जो क्रॉसओवर होगा वो प्योर होगा। वो अप्रोक्सीमेट 560 के आसपास होगा। 580 पे चल रहा है स्पॉट, 560 के आसपास होगा, वहां से जंप लेगा। ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का रह गया है। पर ये नहीं है कि तुरंत हम निकल गए और तुरंत हम एंट्री कर लिया। हमको तीनों का प्रॉपर देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। अभी क्या है, वो सेकंड के हिसाब से ये जो ट्रेवल कर रहा है, चिपक करके ट्रेवल कर रहा है, ये अभी क्रॉसओवर मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है, ये इसको कर रहा है। अभी फेरे चल रहे हैं, अभी शादी कंप्लीट नहीं हुई, अभी विदाई बाकी है। अब ये पहला सिग्नल दिया है अब जाने का 589 पे। बाई करो रंजीत। ये क्रॉस के साथ देख रहे हैं किस तरीके से चला है। इसी जगह के ऊपर इसने क्रॉसओवर किया है, देखिए चला है 604 पे आ गया, 604 पर आ गया है। और तुरंत जाकर के 611 13 EMA को चेक किया है। ऑनर करेगा यहाँ पे 7 EMA और 13 EMA के बीच में। 603 और 611 पार कर गया। अब दूसरा झटका लेगा, ये सीधे लेकर के जाएगा इस पर। 50 पॉइंट तो देगा ही। 617 18 फाइव जनरेटेड है हमारी 20। इसमें हमें प्रीमियम हमारा कम हो रहा है कि डिस्काउंट बढ़ रहा है कि प्रीमियम को एडजस्ट कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इन द मनी पे काम करके हम सीधा जो है वो ऑप्शन के भीतर हम निकल जाते हैं। और जहां ये कंप्लीट हुआ तुरंत जो है बंदे को बोले कि निकल जाओ, निकल गए, काम खत्म। उसको मालूम है 36,500 में काम करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के में। थोड़ा महंगा पड़ता है पर वो हमको 50-60 पॉइंट दे देता है। बस ये रन करीब करीब 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 मिनट इसने जो ट्रेवल किया है, ये 11:55 से ट्रेवल शुरू किया है और 11:58 तक जाएगा ये ट्रेवल। तब तक ये जो इंडिकेटर का जो इस हिसाब से स्पीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने हम पूरा खाने की जगह थोड़ा सा दान दे कर चलते हैं। 40 पॉइंट 50 पॉइंट एक रन के भीतर 3 मिनट में मिल रहा है, क्या है, पॉइंट छूटना नहीं है। तो वो 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट बाई टू सेल और सेल टू बाई, इन दोनों में मिला करके 90 पॉइंट से ज्यादा आ गया है। और ये जो है 30 पॉइंट तो दे ही रहा है, 120 पॉइंट। माने हम सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा ही इसके ऊपर हम काम करना पसंद करते हैं, ज्यादा देर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतना कंसंट्रेशन के भीतर अपना जो है वो ज्यादा मेंटल पेन लेना नहीं है। वो मेरा अपना लुकआउट है, हमें उससे ज्यादा का काम ही नहीं करना है। बस ये अगले 1 मिनट में इसका जो है वो 11:59 है, 11:60 पे क्रॉसओवर हो जाना चाहिए। 6:25 2 पॉइंट ऊपर लगा दो, निकल जाएगा। निकल गया, निकल गया। और इसी जगह जा करके ये क्रॉसओवर कंप्लीट किया है। अब जाकर के ये मैरिज कर रहा है,
मैनेज कर रहा है, क्रॉसओवर नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर जहां पे ये कंप्लीट करेगा और प्रॉपर करने के बाद, मैनेज करने के बाद, जैसे ही रेड वाला ऊपर आएगा, ब्लू पहले नीचे दबेगा, तो उसी जगह से फिर ये एक डीप लेगा। ये जा रहा है डीप लेने। अब अगले 1 मिनट के भीतर ये गिरेगा। 5 पॉइंट तो यहीं पे दब गया, क्रॉसओवर कर रहा है। ब्लू वाला पहले कर रहा है, वो 3 से 4 पॉइंट का होता है उसमें। इसमें प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी स्टॉप लगाने के लिए तो जो है वो 0.02% का है, पर जब ज्यादा सेट हो जाएगा, खाली इसके ऊपर एंट्री एग्जिट के भीतर जब आंख सेट हो जाएगी सिस्टम पे, तब भी हम तो यही कहेंगे कि आप 50 पॉइंट से ज्यादा वेट मत करो, पर डे एंड में आपको लॉस में नहीं उठाएगा ये डायनामिक्स। सर, हाँ सर जो EMA लगे हैं वो बेसिकली नहीं नहीं, ये जो है ये रेंज के लिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा एल्गो का काम कर रहा है। एल्गो जो चलता है, ऑटो ट्रेड जो चलता है, वो EMA पे चलता है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, पर बता दे रहे हैं। ये जो है ये 2 और 4 और 7 के क्रॉसओवर पे होता है ऑटो ट्रेड। कंप्यूटराइज ट्रेड जो होता है ये उसी के ऊपर होता है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा, 2 EMA 4 EMA को क्रॉस करेगा, ट्रेड जनरेट कर देगा, कंप्यूटर अपने आप ट्रेड ले लेगा। और जब तक वो क्रॉसओवर कंप्लीट नहीं होगा, क्रॉसओवर करके नहीं होगा, तब तक वो जो है ट्रेड कंप्लीट नहीं करेगा, वो ट्रेड पे बना रहेगा। जाएगा तो नहीं, पर वन करो, किस ले सकता है, किसी डाइवर्जेंस ले रहा है, सेकंड माउंटेन बना रहा है। स्टॉप बता दो, 52 कर दो, 92 फर्स्ट आंसर कर दो, 54 पे देखिए ना, 54 कर दो। ये ट्रेवल बहुत फास्ट कर रहा है, इंडिकेटर का ट्रेवलिंग स्पीड ज्यादा तेज है, इसलिए ये बड़ी रेंज देगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 तक देगा।
सर 647 पर सेल स्टार्ट हो गया। हाँ, हाँ जी। स्टॉप लॉस जो है वो 97 का 98 97 का लगाए थे, इसको कम करके अभी जो है वो 15 पॉइंट का स्टॉप कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि ये सर क्यों किया उसको, मतलब क्या देखकर? नहीं, क्योंकि इंडिकेटर की जो ट्रेवलिंग है ना वो एक तो डिग्री प्रॉपर नहीं है। इसकी डिग्री अगर आप यहाँ पर देखो जहाँ क्रॉसओवर किया है ये किस तरीके से जा रहा है, ये थोड़ा सा ऑर्जेंटिकल होना चाहिए रहा, और वो पहला वाला जो है वो उसका डायरेक्शन सही नहीं है, और थर्ड वन जो है ये काफी ज्यादा तेजी से रिड्यूस हो रहा है, इसकी ट्रेवलिंग ज्यादा फास्ट है। मतलब ये है कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये जो है बड़ी रेंज नहीं जा रहा है जो है, तो स्टॉप लॉस तो लॉस होता है, चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो। हमें पहला काम करना है अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना। अब हाँ जी। 47 पे गया है, 47 पे गया है, 35 पर आ गया है, 32 चल रहा है, 31, 29, और ये पहले वाले का इंडिकेटर का जो ट्रेवलिंग फास्ट है। अब इसके भीतर हम सबसे पहले जो है वो अपने कॉस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है ये कॉस्ट का हो जाएगा, कॉस्ट के नीचे हो जाएगा। अब ये पहला वाला जो है ये मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये 12 बेसिक पॉइंट पर है। ये 9 तक आना आ करके करता तो सही रहता है, 9 तक किया नहीं है, मतलब ये अभी फंसा रहा है, ये बाहर बना रहा है। तो हम ज्यादा बड़े रेंज हमको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, दोनों चीज है। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि पहला और तीसरे के भीतर, पहला दूसरा तीसरे के भीतर ट्रेवलिंग प्रॉपर नहीं है। ये 618 तक जा करके 625 पर आया है। अभी भी यहाँ पर हमको 22 पॉइंट दे रहा है, 20 पॉइंट से ज्यादा दे रहा है, 20-21 पॉइंट दे रहा है। तो हम 10 पॉइंट प्रॉफिट का एसएल को कर के हम वेट कर लेंगे पहले। 37 का स्टॉप करके स्टॉप लॉस फायदे में ले आए 37 पे, 37, 38 पे या 40 पे, और वहां पर हम वेट कर लेंगे या बुक कर लेंगे। क्रॉसओवर यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉसओवर किया, मैनेज करने के बाद ये क्रॉसओवर किया, ये हो गया कि ये फंसा रहा है, मतलब हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए, हमें ज्यादा फायदा दिखना चाहिए। निकल जाए 30 सेकंड में निकल जाएगा। ये जो इन बिटवीन माउंटेन बनाना रहता है तेज फॉल के लिए, उस समय ये चीज होती है। मार्केट यहाँ पर ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ये यहाँ पर क्या है, ये पंच फॉर्मेशन कर रहा है। अब पंच फॉर्मेशन करने के बाद मैंने, जिसको आप कह सकते हो कि बड़े एरिया का बॉक्स क्रिएट कर रहा है, ये करने के बाद ब्रेकडाउन ही आएगा, उसके भीतर बैकअप तो अभी आना नहीं है। डायरेक्शन इसका जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये खिला रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये माल पहनाने के लिए रेंज बना रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये बियर और बुल की फाइट का एरिया चल रहा है, जहाँ पे जो है वो बुल अपने हाथ में ग्रिप नहीं जाने देना चाह रहे हैं, और बियर जो है ये ऊपर एवरेज कर रहा है। यहाँ डबल स्ट्रेटजी होती है, यहाँ पे बुल जो होते हैं ये बियर को एवरेज करा करके शॉर्ट करा के ट्रैप कराते हैं, और फिर उनको छोटा छोटा शॉर्ट कवरिंग कराते हैं, बड़ी रेंज में नहीं। बेसिकली ये राइटिंग में होता है, तो
क्योंकि उसमें 200-300 पॉइंट का सीधे जो है हेवन एरिया मिलता है। हो गया एग्जीक्यूट 37 लंच कर लो। तो 10 पॉइंट पर ही एग्जिट कर गए हैं अपने टेस्ट को। से 37, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है ये माउंटेन बना के ये फर्स्ट सेकंड है, थर्ड माउंटेन बनाने के बाद शार्प फॉल आएगी। ये मैरिज कर रहा है, ये थर्ड वन जो है ये अगर मैरिज कर रहा है तो इसकी थर्ड वन तीसरे की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। पर प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए उसमें ये तीनों पैरामीटर लगा करके करेंगे तो हमारा ट्रेड जो है गड़बड़ाएगा नहीं। बाकी देखना हमें है कि हम किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, किस तरीके से देख पाते हैं, कर पाते हैं। मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन? क्लोज करें फिर सेशन। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी सर। हाँ जी। हाँ हो गया तो अब क्लोज करते हैं सेशन को। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो जानना बोलिए। चाहता था कि आप इसको ऑटोमेट जो कर रहे हैं, हाँ जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो ये लाइकली कितने दिनों में आपका ये रेडी हो अरे अभी जाएगा? तो 6 महीना लगेगा अभी। 6 महीना लगेगा। तो फिर आपको फिर ये ऑटोमेशन जो है आप ये मतलब शेयर करेंगे कुछ, क्या होगा आगे प्रोसीजर इसका, कुछ आपका पहले प्लान बंद है क्या करके तो कुछ? आ जाए क्या एग्रीमेंट होता है डेवलपर से, उसके बाद फिर अच्छा, जैसे एमी ब्रोकर है, मेटा स्टॉक है, उस तरीके से जो है वो अपना स्वयं का बना रहा है। चलिए ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। उसमें जो है ये दोनों चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंडिकेटर वो सिंगल इंडिकेटर के ऊपर अपने आप को ट्रेड कर लेगा एपीआई की। जी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि जो मार्केट आवर्स है उस टाइम पे कहीं और भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस उनके लिए ये जो आपका कंसेप्ट है बहुत ही बढ़िया है, और ऑटोमेट हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा एक तरीके से। ये जो है इसके भीतर हम ज्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटा 2.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा ही खाली काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। अगर करना होता है 1-1.5 घंटा काम करते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोनों तरफ आज ही बाई भी किया है, सेल भी किया है। आपका ये कोई और आगे एक दो सेशन और दे सकते हैं क्या, ताकि थोड़ा सा और हाथ बैठे इस पे? इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो। सबसे इसका तरीका वही होता है कि आप पहले 4 दिन खाली बाई खोजो, ठीक है बस 4 डे ओनली बाई खोजो जी। 1 मिनट में। अच्छा, अगर 15 सेकंड होता तो 15 सेकंड पे बोल दो, लेकिन 1 मिनट पे आप बाई खोजो और फिर 4 दिन के बाद खाली सेल खोजो। जी जब अगर मार्केट डाउन साइड है तो बाई खोजो, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो सेल खोजो। इस तरीके से 4-4 दिन का 2 शेड्यूल बना लो और उसके बाद दोनों साइड का ट्रेड देखो। मत ज्यादा बड़ा काम करो, ऑप्शन के भीतर एक लॉट में काम करो ताकि उसके भीतर ज्यादा टेंशन ना रहे। पर आंख सेट हो जाए, आंख और उसका कॉन्सेप्ट जब आपका सेट हो जाएगा तब आप फ्रिक्वेंटली दोनों साइड में काम करोगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लगना नहीं है। मैंने ये नहीं है कि 9:15, हम कभी 9:15 बजे मार्केट में आते ही नहीं। हम जब आते हैं तो 9:30 बजे के बाद ही आते हैं, तो नॉर्मली 10:30 11 बजे। सर ये कौन से समय आप बता रहे हैं? 9:30 से 11:30 के बीच बेस्ट रहता नहीं है? नहीं, किसी कोई भी टाइम जब आपके पास टाइम हो, हाँ जी। 1 घंटे का टाइम हो, तब आप इसके ऊपर काम कर लो, कोई भी टाइम। और आप इसका जो है वो डेली का अगर आप पॉइंट निकाल करके चलोगे तो आपकी आंख फट जाएगी, आपको भरोसा नहीं होगा। 5 बार बैक टेस्ट करोगे, ये दावा कर सकते हैं। सर जब ये डबल माउंटेन टाइप बनाता है, वो वाली एंट्री क्या बेटर रहती है कि सिंगल? ऐसा कुछ नहीं है? जहां पर तीनों कॉम्बिनेशन अगर एक जगह मिल गया तो वो बेस्ट होती है। तीनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कह रहे हैं, मतलब जहां अगर पर एक जगह मिल जाएगा, उसमें कोई एक आइटम आपका जो है डबल माउंटेन बनाएगा ही बनाएगा और एक आइटम हाँ। ट्रेवल करेगा, हाँ जी। उसके बाद विदाई होगी उसकी। हाँ, सो जब हमारा इनका जब मुंह खुल जाता है
उस मुंह समय खुलने हमें के एंट्री मुंह लेनी है। खुलने के बाद नहीं, मैरिज करके जहां के भीतर अगर सेकंड माउंटेन बना करके जैसे ही मैरिज करके ब्लू पहले क्रॉस करेगा, ब्लू जैसे ही क्रॉस किया हाँ। और रेड वाला ट्लिंट किया, हल्का सा ट्लिंट किया, बस एंट्री उसी सेकंड हो जाएगी। तो उस समय रनिंग कैंडल में भी कि कैंडल वेट करना है नहीं खत्म वेट होने नहीं का? करना है रनिंग कैंडल में। वो जब उसकी वो कंडीशन है तब आपको अपना ट्रेड को फीड करके रखना है, खाली पंच करने रह जाएगा, बस इतना ही करना है। और अगर बीच में जा करके कभी भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे में बीच में जा करके अगर क्रॉसओवर करता है फर्स्ट और थर्ड, अगर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है तो एक थोड़ी सी बड़ी रेंज देता है वहां पे 2 मिनट में। सर और क्या अगर बोला? 2 जैसे 2 मिनट में जैसे ये फॉल के भीतर हमने बोला था कि ये ज्यादा फास्ट चल रहा है, मतलब ये फॉल ज्यादा बड़ी फॉल नहीं है। हेलो, ये बोले रहे, ये इसलिए बोले रहे क्योंकि ये थर्ड वन जो है ये ज्यादा तेज ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर आकर के क्रॉसओवर भी कर लिया और हम सफलता मैंने साफ साफ जो है एग्जिट कर गया, बीसी पॉइंट खा के एग्जिट कर गया, पर हमने लॉन्ग ट्रेड लिया नहीं। नॉर्मली ले लेते हैं, बंदे को जो है वो लंच करना था तो हमको भाई ठीक है कर लो, खा के नहीं आराम से कर लो, तो बटन दबाता है हमको। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? थोड़ा सा अगर सेशन लेट ज्वाइन किया था तो पूरा प्रॉपर अभी पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। लेट ही हुआ रहा 15 मिनट, क्योंकि मैं शादी में गया हुआ था, रास्ते में था 11 बजे, तो कमल सर को बोले रहे, तो सर ने बोला कहा ठीक है आप पहुंच जाओगे तो बता देना। पहुंच गए, उनको पता है, तो 11:30 बजे शुरू ही हुआ है। सर एक्चुअली मेरा भी मिस हो गया स्टार्टिंग में, कोई मैं बात 2 बार आया था। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अच्छा फिर ठीक है सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, कमल सर के पास है। सर जो सबसे नीचे का स्टॉक RSI है 7432, तो हाँ। इसकी सेटिंग क्या है? ये 7432 क्या है? ये RSI लेंथ 7 है, स्कॉच की लेंथ है 4 और परसेंट के है 3 और डी है 2। ये इन्वेस्टिंग का है, ये हर किसी का अलग अलग होता है, किसी में कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में अलग है, इसमें अलग है। बीच वाले में सर 932 वो क्योंकि जाता है स्कॉच लेंथ है 9, स्मूथ हाँ, परसेंट के है 3 और डी है 2। तो फिर इसमें 4 क्यों नहीं है एंट्रियां? वही थोड़ा सा डिफरेंट लग। हाँ इसमें 4 नहीं है ना, जैसे नीचे वाले में 7432 है। हाँ, ये इसमें जो है RSI जो है वो एक्चुअल क्या है ना कि RSI के साथ क्रॉसओवर होता है, तो हमें अलग से RSI की जरूरत नहीं है। स्कॉच RSI जो है वो दोनों का कॉम्बो होता है, इसलिए उसका कॉम्बिनेशन जो है वो स्कॉच RSI का 7432 है। बाद में अगर आपका वो हो जाता है 5 मिनट के भीतर आप करते हो तो आप खाली सिंगल जो है स्कॉच RSI पे भी ट्रेड कर सकते हो, उसके भीतर भी आपको जो है बढ़िया ट्रेड मिलेगा, सक्सेस रेशियो तगड़ी मिलेगी 5 मिनट में अगर कर रहे हो तो। उसमें स्टॉप थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें 0.03% का स्टॉप हो जाता है, बस खाली जहां क्रॉसओवर होगा वहां घुसना है, जहां पर होगा वहां निकलना है, वहां पे फिर बाकी इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है। 5 मिनट के भीतर करना है तो खाली उसके भीतर कर सकते हो, 1 आवर में करना है तो खाली उसके भीतर कर सकते हो। जहां पर होगा, जहां पे वो क्रॉसओवर करेगा मैरिज करेगा या क्रॉसओवर मैरिज करेगा, वहां से आपको रन मिलेगा ही मिलेगा। जहां मैरिज करेगा वहां से आपको फॉल ऊपर करेगा, बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है ना इसकी एक्यूरेसी 99.5% है। उसके साथ बाकी कुछ जो है ना प्राइस एक्शन लेना ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो खाली इसी के ऊपर काम ही करते हैं, इंडिकेटर पे, मोमेंटम इंडिकेटर पे। अब इसी के भीतर जो है यहाँ पर आप पोजीशन, इस जगह पोजीशन देख लो, इस जगह जो है ये टॉप करने के बाद ये ऊपर से ट्रेंड किया इस कैंडल के साथ, शॉर्ट बताया 1 आवर में। तब ये जो है 9:30 पे 3 तारीख को 9:30 पर इसने फॉल बताया,
तो कहाँ तक ले करके गया, ये लेकर गया 3 तारीख को 1:30 तक। हम लास्ट वाले पे खाली बोल रहे हैं आपको, अभी वहां पे बोला, और वहां पे बोला कि फिर हम ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम लेवल देखें तो 36,164 रहा, वहां से लेके गया, और फिर इसमें जो है वो बीच में आकर के यहाँ पे अपने ट्रेवल को क्रॉस ओवर कर लिया 11:30 पे 6 तारीख को 11:30 पे कवर कर दिया 215। माने ये हमको जो है ये हमको 172 से 172 से 200 215 तक का मूव दे गया, पर लेने में 2 दिन लगा दिया। फिर वहां पर उसने वापस क्रॉस ओवर किया कि हम फॉल जा रहे हैं, वो फॉल जा रहे हैं, उसने वो कल कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए कल हम राइटिंग में चले गए थे 3:30 पे कंप्लीट कर लिया, हम राइटिंग पे चले गए। हम तो इन द मनी राइटिंग करते हैं। तो जो है वो 36,500 का पुट शॉर्ट है फाइनल एक्सपायरी का। उसमें रिस्क, हाई रिस्क पे जाते हैं, उसमें रिस्क हाई होती है, पर सीधी सी चीज है कि 600-700 रुपए का अगर हम पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो जब उसके ऊपर एक्सपायरी 700 पॉइंट ऊपर होगी तब हमारा रिस्क होगा, क्योंकि उतना पैसा तो हमको क्रेडिट मिल गया है, तो वही उसके भीतर कम बेसी होता रहता है, उतनी जगह ले करके चलना पड़ता है। वो एक अलग आर्ट है, उसके भीतर भविष्य में कभी क्लास लेने का मन हुआ तो ले करके बता देंगे, लेकिन वो रिस्की चीज है, क्योंकि उसके लिए जो है पेशेंस और गट्स दोनों बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी होगा। ये 30 मिनट और 1 आवर अगर एक जगह कॉम्बिनेशन मिल गया तो हम वहां पर तो जो है ओवरनाइट चले जाते हैं, सी लेकर के बाई करके भी चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमको राइटिंग करना है कि क्या करना है, किस तरीके से चलना है। राइटिंग के भीतर फाइनल एक्सपायरी रहता है, और इसके भीतर जाते हैं जब तक नेक्स्ट एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी कल खत्म हो रही है, 2 दिन बाद खत्म हो रही है, तो हम नेक्स्ट वाले में काम करेंगे। और उसके भीतर 800, 700, 800 पॉइंट पार का सी या पी लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 300 पॉइंट की अप्रोक्सीमेट बैंक निफ्टी की जो है वो वोलेटिलिटी हम मानते हैं, तो 300 पॉइंट पर वो हमको 50 पॉइंट दे देगा, काफी है उतना, उससे ज्यादा वो नहीं है। और बाकी इंट्रा के लिए तो जो है इन द मनी पे ले करके उसमें तो 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेड करना है बस। ठीक है, क्लोज करें। एनी क्वेश्चन? हेलो सर ये जो स्ट्रेटजी है इसका डाउन साइड क्या है, मतलब कभी मतलब फेल कब होता है, क्या है क्या चीज? ये जो जहाँ स्ट्रेटजी आपने जहाँ पर ये तीनों जो है एक जगह पर आ जाएगा, वहां पर डाउन। और मिलेगा ही मिलेगा डाउन वहां पे। और ये जो है वो अगर 4H में, अगर 4H में अगर मिल गया, 4H में अगर मिल गया, तो ये समझ लो कि वो बड़ी रेंज देगा। 2H और 4H ये अगर एक जगह पर है, अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो फॉल कंप्लीट नहीं होती है। इसकी एक सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, फॉल कहाँ कंप्लीट हो रही है। अगर इसने ट्रेवल फॉल के लिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से प्योर किया थर्ड वन, तो थर्ड वन जब यहाँ पे आकर के कल जब कंप्लीट किया, ये 2 बजे तक फॉल इसने किया कल, इसने बोला है कि हमारी फॉल खत्म हो गई है, अब आप निकल जाओ। एक कैंडल पहले बताएगा, जो भी आपका टाइम फ्रेम रहेगा, एक कैंडल पहले ही आपको अलर्ट दे देगा। 1 मिनट की कैंडल होगी तो 1 मिनट पहले देगा, 5 मिनट की कैंडल होगी 5 मिनट पहले देगा। और एक कैंडल पहले आपको इस जगह पर है कि आप
इस पर काम करना है तो इमोशन से हट के काम करना है। अगर इमोशन ले लिए कि अब लग रहा है ये फिर जाएगा, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये कर रहा है, उस चक्कर में नहीं हो गया है। और अगर इनकेस अगर क्रॉसओवर के बाद भी वो जो है दबने के बाद नहीं हो रहा है, तुरंत आप उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पर आओ, वहां देखो एक्ट क्या कर रहा है। जैसे 1 मिनट पर है, 5 मिनट पर है, 5 मिनट पे क्या एक्ट कर रहा है, 5 मिनट में अगर क्रॉसओवर नहीं हुआ तो 1 मिनट को खिला करके वो उसको कंप्लीट करेगा, फिर गिराएगा। और जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लेना कि फॉल खत्म हो गई है। लेकिन हमको बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं है कि हमारा प्रीमियम गले या वो चीज। अगर ऑप्शन में काम कर रहा है तो इसके भीतर भी इन द मनी काम कर रहा है। 40-50 पॉइंट का हमें चार्ट ट्रेड मिल गया, मोर देन सफिशिएंट है डे के लिए। अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको अगर यूज करना है तब आप करो, और अगर बड़े उसके भीतर यूज करना है तो उसको मत करो। इसको कैश बेस्ड डिलीवरी के लिए बाई करके इंट्रा में सेल कर सकते हो, बहुत बढ़िया आपको रिटर्न आएगा। उसके भीतर आप मोटा मोटी मंथ में 10-12% से ज्यादा कमा लोगे अगर वोलेटाइल स्टॉक में पकड़ के कर रहे हो। जैसे कोटक बैंक है, इंडस बैंक है, या बजाज फाइनेंस वगैरह है, इन सब के भीतर करोगे तो 10-12% आप मंथ का बड़े मजाक में निकाल लोगे। खाली 5 मिनट के टाइम फ्रेम को और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जिट को यूज करके करोगे। क्लियर? क्लोज करना है। थैंक यू सर। वेलकम।